Hello everyone and a very warm welcome to Ram IAS. This is Arushi over here and today we'll be taking up the discussion on जो नया income tax bill table किया गया है before the parliament along with the union budget that is pending the approval before the parliamentary committee. क्यों ये important है और क्या इसके important provisions हैं? Let us have a brief overview. बट सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि ये बिल क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, किस पर्पस या किस ऑब्जेक्टिव से इंट्रोड्यूस किया गया है. सो इफ यू all can recall, it has been years when the government have been trying to implement reforms like the direct tax code or one nation one tax, uniform form 16 for ITR, right? बट अगेन देर आर सर्टन लेजिस्लेटिव बैकलॉग्स. तो अभी एक बहुत ही छोटा सा ये स्टेप है, right? It is a very small step towards a more institutionalized and a potential future reforms जो आने वाले समय में हम लोग देख सकते हैं. ये उसकी आप एक तरीके से कह सकते हो शुरुआत हो चुकी है, right? The foundations have been laid. तो सबसे पहले the objective of this is clarity of law. यानी कि जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं जिनको डायरेक्टली डील करना पड़ता है, समटाइम्स दे डू नॉट अंडरस्टैंड द लॉज रिलेटेड टू द टैक्सेशन, राइट? सो द बिल एम्स टू मेक इनकम टैक्स लॉज. वी ऑल नो हमारी कंट्री में इनकम टैक्स के रूल्स को कौन सी एक्ट गवर्न करती है? ओरिजिनली इट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961, राइट? सो द बिल इज रादर शॉर्टर, crisper and in a very easy to understand language, right? So for example, पहले जो income tax act था that had somewhere around 800 something pages है, तो अभी 500 something pages का बिल है, यानी कि 24% जो है shorter है in terms of the number of schedules, in terms of the number of pages, in terms of the number of chapters and everything. That is lesser in number, right? Better litigation. जैसे clarity of law is there, it automatically leads to better litigation. Better litigation in the sense, if the taxpayer is being able to understand the taxation laws, the chances of disputes come down, right? The chances of disputes come down. और अगर by chance अगर in case कोई dispute arise भी होता है, कोई dispute होता भी है, then better understanding, right? बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज मेन जो ऑब्जेक्टिव है, राइट? सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज विल अल्टीमेटली लीड टू व्हाट? स्पीडी रेजोल्यूशन. सो विद बेटर क्लैरिटी एंड बेटर लिटिगेशन, व्हाट विल वी फाइनली बी अराइविंग एट? टैक्स सर्टेनिटी, राइट? जो टैक्स सर्टेनिटी है और प्रेडिक्टेबिलिटी है, इफ वी आर एबल टू बेटर अंडरस्टैंड द लॉज, द टैक्सेशन लॉज, we will be able to predict in future कि अच्छा अगर कहीं पे error है, कहीं पे flaw है, as a person who is liable to pay tax, if I am reading the income tax act, we will be able to predict कि ये loophole है, शायद potentially इसमें आगे चल के changes हो सकते हैं, right? So there is better tax certainty, that is there is better predictability that ultimately helps us in what? It ultimately helps us in ease of doing business. Ultimately helps in ease of doing business, easier tax compliance. So this is the overall objective, broad objective of the new income tax bill. Now let us understand कि changes क्या है, major changes क्या है. तो सबसे बड़ा और जो major change introduce किया गया है, right? Not just that it is shorter and simpler, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है दैट इज द चेंज ऑफ टैक्स ईयर, जो कि न्यू टैक्स रिजीम से अलाइन करता है. आई होप यू ऑल नो द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू टैक्स रिजीम, राइट? ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या था? आपका प्रीवियस ईयर था और आपका असेसमेंट ईयर था, राइट? सो 1989 से अगर आप देखो तो एक प्रैक्टिस चलती चली आ रही है प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर की, राइट? 1989 से प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की एक प्रैक्टिस चलती चली आ रही है. वी आर कंपेयरिंग, राइट? प्रीवियस ईयर में ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि देर आर 12 months दैट अ पर्सन, एन इंडिविजुअल और अ बिजनेस इज अर्निंग इनकम, एंड फॉर ईच ऑफ द 12 months द सोर्स ऑफ द इनकम इज डिफरेंट, and then we have to assess it in the present financial year, and the present financial year also becomes the previous year for the next assessment year, right? So this
ऑब्वियसली दिस विल लीड टू अ ग्रेट लॉट ऑफ कंफ्यूजन. इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए देर इज सिंक्रोनिसिटी बिटवीन व्हाट, बेसिकली इनकम एंड टैक्सेशन. तो जो भी प्रेजेंट ईयर की इनकम होगी, राइट, और जो भी प्रेजेंट ईयर का टैक्सेशन होगा, क्या रहेगा वो, दैट विल रिमेन अलाइंड, राइट. प्रेजेंट ईयर का इनकम एंड प्रेजेंट ईयर का टैक्सेशन दैट विल रिमेन अलाइंड. जिस साल आपका इनकम अर्न कर रहे हो उसी साल का आपका टैक्स जो है असेसमेंट में के लिए जाएगा, राइट. सो दैट विल लीड टू अ लॉट ऑफ सिंप्लिसिटी. इसी के साथ इफ यू सी, चैलेंज जो अटैच होकर आता है, दैट इज नॉट आवर बर्डन, but that is the burden of the financial professionals and the accountants. They have to update and upgrade their systems, right, their accounting standards accordingly, right. But once that change is put in place, एक बार वो चीज़ implement हो जाती है, streamline हो जाती है, तो आगे चल के उससे comply करना बहुत ज़्यादा easy हो जाता है. एंड नाउ इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्रीज, ये ऑलरेडी काफ़ी सारी कंट्रीज में इम्प्लीमेंट है, दैट इज सेम ईयर टैक्स या टैक्स ईयर वाला कॉन्सेप्ट, राइट. सो ये मॉडर्न टैक्स सिस्टम से भी अलाइन करता है. नाउ जो आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1st ऑफ अप्रैल टिल 31st ऑफ मार्च. इसी तरह टैक्स ईयर भी आपका 1st ऑफ अप्रैल से 31st ऑफ मार्च तक कैलकुलेट किया जाएगा, राइट. वन थिंग. सेकेंड थिंग, कोई भी बिजनेस या एस्टैब्लिशमेंट अगर स्टार्ट होता है, से फॉर एग्जांपल इन द मंथ ऑफ जून और जुलाई, अगर कोई बिजनेस या एस्टैब्लिशमेंट, और फॉर एग्जांपल इन द मंथ ऑफ अगस्त अगर कोई बिजनेस या एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट किया गया है, तो उसका जो टैक्स ईयर कैलकुलेट होगा दैट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त टिल 31st ऑफ मार्च, right, from the date of commencement till 31st of March, right, as simple as that. Okay, so this will automatically lead to ease of compliance. It aligns with the modern tax framework. Tax year वाला concept already बहुत सारी advanced economies, OECD countries already follow कर रही हैं, right. जब compliance easy रहेगा, राइट, एंड एक बार ये चेंज इंस्टीट्यूशनलाइज या स्ट्रीमलाइन हो जाता है तो रेवेन्यू कलेक्शन भी इजी हो जाएगा, बिकॉज इट विल ईज द टैक्स बर्डन, right, it will ease the tax compliance on the part of both the payee and the tax administrator, right. And it will also lead to a lot of clarity. How? It will do away with the confusion that has been associated with the previous year and the assessment year. Okay, so it aligns with the global practices, eases the tax burden. अब टैक्स बर्डन जैसे जैसे इजी होता है, जब बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है, जब कंप्लाई करना इजी हो जाता है, तो द सिस्टम जो होता है ना वो ऑटो पायलट मोड में रन करने लगता है. द सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स रनिंग ऑन एन ऑटो पायलट मोड, right. There is clarity of law, there is better understanding, there is a lot of certainty. So when जब भी certainty होती है, जब भी clarity होती है, जब भी understanding आपकी बेहतर हो जाती है, तो litigation होते हैं या फिर disputes जो होते हैं वो automatically come down हो जाते हैं, right. Automatically they are reduced to almost zero. एंड आता भी है फ्यूचर में, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म सेट इन प्लेस है, दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी वेरी इजी, राइट. गवर्नमेंट एफिशिएंसी एनहांस होती है, राइट. ये डिजिटल टैक्सेशन को फैसिलिटेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आने वाले समय में, राइट. सो इफ़ यू ऑल नो ऑलरेडी, you can go to your internet of banking also provides a very good facility for digital taxation. As a taxpayer you can go and file your own income tax returns by downloading the form 16 from the website of your bank. I hope you all know that. Okay, so it will facilitate digital taxation, क्योंकि अब और भी ज़्यादा easy हो जाएगा किसी भी individual को अपनी income जो है align करने के लिए, right. It will enhance government efficiency and all. So these are very basic and common points, but if you will mention that in your mains examination, it will enrich your answer to a great extent. दूसरा, crisp and simplified language. As we all know, shorter length यानी कि 24% जो है it has been made. पहले 823 pages का था, now it is 520 something odd pages, right. There are as many as 23 chapters,
पहले 47 चैप्टर्स हुआ करते थे. नाउ डोंट यू नीड नॉट रिमेंबर द नंबर्स, बट yes, these are very basic point. Clauses, increased number of clauses, you all must be thinking would add to the bulk, but that is not so. Number of clauses जब increase होते हैं तो इससे होता क्या है, क्रॉस रेफरेंसेस कम हो जाते हैं. क्रॉस रेफरेंसेस मतलब क्लॉजेज यूजुअली जब कंबाइंड होते हैं, जब उनको बल्क में कंबाइन कर दिया जाता है, सो यू हैव टू रीड, फॉर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड, जस्ट सुपरफिशियल एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ. सेक्शन 115 का क्लॉज ए अगर आपको समझना है, देन यू हैव टू रीड इट विद सेक्शन से 124 clause 2, sub clause A, sub clause B and all. These are all legal jargons, right? So ये duplication ना हो और हर clause specifically अलग से specified हो, हर चीज specific हो, right? और जो भी end टैक्स पेयर है, जो भी लेमैन है, उसको क्रॉस रेफरेंस का बर्डन ना झेलना पड़े, राइट? दैट इज वाई द नंबर ऑफ क्लॉजेस हैव बीन इंक्रीज्ड to reduce cross. इससे क्या होता है, also this will increase number of clauses will also ensure speedy resolution, speedy dispute resolution, right? It will ensure speedy dispute resolution. Easy to understand language, we all know that. For example, जैसे legal jargon हो जाता है, notwithstanding, we all are very well educated, even non-legal students, अगर आप यूपीएससी का तैयारी करें, you know what it means. बट सपोज नॉन लीगल बैकग्राउंड का कोई भी टैक्स पेयर है, इतना टाइम नहीं है समझने के लिए, बहुत आसान सी भाषा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, तो सबको समझ में आता है, राइट? सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड लेमैन लैंग्वेज में टैक्स लॉ को कन्वर्ट किया गया है, ठीक है ना? देन वी नीड टू एक्सपैंड द डेफिनेशन ऑफ इनकम. We need to expel, so the tax law actually expands the definition. So इसमें जितने भी आपके virtual digital assets हैं, right? Virtual digital assets की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो it has been defined to call for information, right? और जितने भी आपके इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं ड्यूरिंग द सर्वेज, राइट, जितने भी सर्चेज हैं, जितने भी सीजर्स हैं, जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जितने भी आपके ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स हैं, रिमोट क्लाउड सर्विसेज हैं, डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सबको वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपकी जितनी भी आपकी टैंजिबल वेल्थ होती है, लैंड, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, दीज आर ऑल योर टैक्सेबल एसेट्स, राइट? तो डिजिटल एसेट्स भी होंगे, उनको भी इन द स्कोप ऑफ वेल्थ इन द टर्म्स ऑफ कैपिटल टैक्सेशन और कैपिटल असेसमेंट इट हैज बीन इंक्लूडेड, राइट? इसमें आपके क्रिप्टो करेंसीज भी इंक्लूडेड हैं, राइट? Definitely, the cryptocurrencies have also been included. NFTs have also been included in this, in the scope of virtual digital assets. Now virtual digital assets से related I think prelims में भी एक बार question आ चुका है, so definitely we need to focus more on the definition of what exactly comprises of a virtual digital asset. Okay, so now this is as a part of homework for all of you. Go and find out the exact legal definition of virtual digital asset from the scope of Income Tax Act. Okay, from the scope of the new Income Tax Act. और ये आपको exactly कहाँ पे मिलेगा मैं वो भी आपको बता देती हूँ, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट गो टू द यूनियन गवर्नमेंट वेबसाइट जहाँ पे बजट आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बजट का समरी भी डाउनलोड कर सकते हो. यू विल ईजिली फाइंड द डेफिनेशन ओवर देयर. ऑलराइट, दैट इज अनदर एस्पेक्ट. अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें और क्या क्या फीचर्स हैं, रिडंडेंट प्रोविजंस. रिडंडेंट प्रोविजंस, फॉर एग्जांपल सेक्शन 54E दैट यूज्ड टू डील विद कैपिटल गेन्स. सेक्शन 54E ये कहता था कि भाई अप्रैल 1992, before April 1992, all the transfers, all the capital gain transactions that took place will be liable for capital gain transaction. अब आज के डेट में इसका कोई यूटिलिटी नहीं है. इट हैज़
been rendered redundant because it is for a very long time ago. ऑलरेडी सारा मामला उसके अंडर सेटल हो चुका है, तो अब इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, इसको रिमूव कर दिया गया। और जितने भी नए प्रोविजंस हैं, जितने भी नए एक्ट्स हैं, नए फॉर एग्जांपल इवन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की अगर हम लोग बात करें, ऐसे जितने भी नए नए प्रोविजंस इंक्लूड करे गए हैं, उन सारे के सारे नए प्रोविजंस को सेक्शन 115 के अंडर इंट्रोड्यूस किया गया है, अंडर वेरियस क्लॉजेस एंड सब क्लॉजेस, right? So it is very very important for us from the point of view of prelims, from the point of view of mains, even from the point of view of interview, कि we once go through section 115, it is not very bulky, right? एक ही पेज का होगा maximum. We will definitely post a screenshot for all of you, go through it once, right? प्रोविजंस में क्लैरिटी ज़्यादा है। नाउ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस एंड जो जितने भी इनकम टैक्स से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, उसके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस करे गए हैं, वो समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? वी नीड टू अंडरलाइन और वी नीड टू डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ determination, that is what is the root cause behind the dispute, क्यों हुआ है ये dispute, right? We need to make certain decisions, क्या decision लिया जाएगा, what is the reason for rulings। अब भाई कोई भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अथॉरिटी या ट्राइब्यूनल कोई भी डिसीजन लेता है और कोई भी रूलिंग या जजमेंट या डिक्री इशू करता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, दैट pretty much aligns with the principle of natural justice, right? And tribunals especially have to adhere to that. So this is a very very important clause. कोई भी डिसीजन लिया गया, उसके पीछे का रीजन क्या है वो डिस्क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। Now this is also a step towards clarity, right? उसके बाद डिसीजन के बाद जो टैक्स पेयर्स हैं और जो बिजनेसेस है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। The final and the most important reform that has been introduced is कि भाई जो आपका dispute resolution panel है वो आगे चल के changes भी recommend कर सकता है, right? For example, dispute का जो भी reason है, जो भी cause determine किया गया है, future में दोबारा ना हो, उससे related legislative and institutional changes recommend कर सकता है dispute resolution panel. So this is a very very important change that has also been introduced in the Income Tax Act, right? Redundant provisions have been removed, right? जितने भी आपके इनकम टैक्स स्लैब्स हैं, जितना भी कंप्लायंस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं, उन सबको टैबुलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है इन ऑर्डर टू मेक श्योर द कंप्लायंस इज इजी, राइट? ये सारे आपके वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर मेन, राइट? फॉर्डर फॉर मेन्स आप एक एक पॉइंट में भी लिख सकते हो, राइट? यहाँ पे ये जो तीसरा पॉइंट है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, डिजिटल सर्विसेज एंड इकोनॉमी कंसिडरेशंस, सर्विस ओरिएंटेड। तो जितने भी ऑनलाइन सोर्सेज ऑफ इनकम हैं, टू एंश्योर फेयर टैक्सेशन अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, जितने भी ऑनलाइन सोर्सेज ऑफ इनकम हैं, राइट? जितने भी आपके डिजिटल एसेट्स हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स वी हैव ऑलरेडी सीन, राइट? जितने भी आपके डिजिटल एसेट्स एंड ऑनलाइन सोर्सेज ऑफ इनकम हैं, राइट? दे हैव नाउ क्लियरली बीन क्लासिफाइड इनटू कैपिटल एसेट्स, right? They have clearly been classified into capital assets from the point of view of better Income Tax Act, right? So this was all about it. This was all about it. Pending legislative approval, the tax जो भी है, it is pending the legislative approval of the parliamentary committee. Now this is not a very major challenge, a temporary challenge है, आगे चल के definitely resolve हो जाएगा। मेन ऑब्जेक्टिव आप यही जान लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंट्रोडक्शन, ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंक्लूजन। भाई जो टैक्सेशन, इट हैज़ बीन मेड सिंपलर, इट हैज़ बीन मेड क्लियरर, इट हैज़ बीन स्ट्रीमलाइंड एंड ऑल, राइट? इट विल इम्प्रूव द लैंग्वेज एंड द स्ट्रक्चर, टैक्स रेट एंड पेनाल्टीज में भी इम्प्रूवमेंट लाया जाएगा, राइट? It will remove the provisions, the explanations, the redundant provisions and everything. So overall, this is a road for a
clearer understanding and better compliance. अब धीरे धीरे we are inching towards a direct tax code or uniform tax code जो throughout the economy it will be easier to implement, right? तो जीएसटी के लाइंस में भी आपका इनकम टैक्स एक्ट अब बहुत जल्द, not this year but maybe next to next financial year, it may get implemented, right? This is just a very small structure reform. Last but not the least, the act will become effective from 1st of April 2026, not 5. अगले फाइनेंशियल ईयर में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा. So this was it from my side related to the income tax bill that will become an act after the approval of the parliamentary committee. For any doubts and queries, make sure to comment below. Thank you so much.